This is lecture 12 in continuation of lecture 11, where we were discussing about topic principles of catalysis, enzyme and enzyme kinetics. In lecture 11, we have already discussed about enzyme kinetics, Michaelis-Menten. Basically, exam perspective से किस type के questions आते हैं. This is the enzyme catalyzed reaction. Rate constants, possibilities, curve, hyperbolic. ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी. उससे पहले हमें एक बार माइकलिस-मेंटन मॉडल को दोबारा देखना है. बेसिक चीजें देखनी है. assumptions. दिसंबर 2026 CSIR DBT मर्ज हो रहा है. यू नेवर नो क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, इसलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. Michaelis-Menten model for kinetics of enzyme catalyzed reaction. This is the enzyme catalyzed reaction, right, where K1, K-1 and K2, these are rate constant. And catalytic strategies जो हम lecture 11 में मिस कर चुके हैं, वो मैं लास्ट में जो वन शॉट वीडियोस आने वाली हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स हमने स्किप किए हैं या मिस हुए हैं वो सारे उसमें इंक्लूड हो जाएंगे. हम एक्टिव रिकॉल करेंगे पूरा यूनिट का उसमें, राइट. सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है. बट ये लेक्चर्स भी देखा करो, बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए. अगर ये नहीं पता होगी तो आपसे पार्ट सी के एनालिटिकल क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाएंगे. सो माइकलिस-मेंटन इन 1933 उसने रिएक्शन स्टडी किया था बाय यूजिंग द एंजाइम invertase which hydrolyzes sucrose. सुक्रोज इज डाइसैकेराइड. हाइड्रोलाइज होने के बाद मोनोसैकेराइड्स बनेंगे, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज. ये वाली रिएक्शन उसने स्टडी करी थी और उसने डिस्क्राइब किया था रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन वेलोसिटी and the substrate concentration. Reaction velocity and substrate concentration. इस रिएक्शन के जो रिजल्ट्स आए थे इन कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू मोनोसैकेराइड्स, ये सारी चीजें माइकलिस-मेंटन ने प्रपोज करी थी इन टर्म ऑफ ग्राफ, इक्वेशन, hyperbolic. So Michaelis-Menten, he noted two features of this kinetics. Two features. The first one, when substrate concentration was kept constant. When substrate concentration was kept constant and enzyme concentration was increased. तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था. रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. सेकेंड, जब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ रिएक्शन इट ऑल्सो इंक्रीजेस and it reaches to its maximum value, that is Vmax. और इसका रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ द saturation effect. These are the features, two important features which was noted by Michaelis-Menten. important इसलिए है बिकॉज सपोज क्वेश्चन आता है लो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट. एट लो कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. और जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होगा वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा, दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. और इन केस
At high concentration of substrate, velocity becomes independent. Velocity becomes virtually independent of substrate. Because it reaches at maximum level, right? Maximum level Vmax, जिसके बियॉन्ड अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज भी करते हैं तो Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट हैज रीचेस इट टू मैक्सिमम लेवल. In this case, rate is no longer dependent, right? Rate is not dependent on substrate concentration. Rate and velocities are the same, right? You can write rate is not dependent, or you can write velocity is not dependent on substrate concentration. That means it obeys zero order reaction. Zero order reaction. Zero order reaction कब होगा? When the substrate concentration is high. In that case, velocity is independent of substrate concentration. Reaction will be zero order reaction, right? And this whole model, Michaelis-Menten model, which was given in 1913, this is based on assumptions. Assumptions क्या थी? Assumptions of Michaelis-Menten model, triple MP. The first one is substrate concentration is much greater than enzyme concentration. पहली assumption Michaelis-Menten ने यही लगाई कि जो substrate की concentration होगी that is much greater than the concentration of enzyme. Second assumption, rate of formation, or you can say association of enzyme substrate complex is equal to rate of dissociation of enzyme substrate complex. And this assumption is steady state assumption. Steady state assumption, which was refined by Briggs and Haldane. Right? And the third assumption of Michaelis-Menten, जब हमने रिएक्शन देखा था एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, K1 rate constant and K minus 1 is the rate of dissociation. K2 rate of formation of product. यहां हमने कोई इक्विलिब्रियम नहीं देखा था, और यू कैन से प्रोडक्ट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिवर्स रिएक्शन नहीं देखा था, राइट? दिस वाज द अजम्पशन ऑफ Michaelis-Menten, थर्ड अजम्पशन. ये तीन अजम्पशंस थे. पूरा Michaelis-Menten इसी पे बेस्ड है. ग्राफ इंपॉर्टेंट है, राइट? इक्वेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, assumptions are also important. Even statement question आ जाता है. Low concentration of substrate, which reaction will it be? Zero order or first order? Super important है. Now we'll discuss about steady state assumption. Refine किसने किया था? Briggs and Haldane ने. Steady state assumption का मतलब था जो rate of formation या association होगा that will be equal to rate of dissociation. Means जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन. दिस वाज द ग्राफ. concentration on y-axis with respect to time on x-axis. This was the Michaelis-Menten model. ये ग्राफ आया था. This is the substrate concentration. This is the total enzyme.
concentration, and this one is the enzyme substrate concentration. सारी क्वांटिटीज पे ध्यान देना. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टोटल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज Vmax, एंड इट इज द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन. एंड में तो प्रोडक्ट ही बन रहा है रिएक्शन के बाद, राइट? दिस ग्राफ, this line specifically shows steady state assumption, where you can see the concentration of enzyme substrate complex is constant. Initially 0 to steady state plateau. This plateau shows steady state. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिक्स होंगे तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट होगा इनिशियली वो राइज करेगा, राइज करेगा, राइट? ग्राफ भी राइज हो रहा है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वो एक स्टेडी स्टेट में चला जाएगा. इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ सुपर इंपॉर्टेंट है. पार्ट सी स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. क्वांटिटीज पे ध्यान देना है, right? Next thing which is super important, Km and Vmax. Km and Vmax, maximum velocity and Michaelis constant. इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट है, राइट? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ग्राफ बेस्ड तो क्वेश्चंस आते ही हैं. Michaelis constant, or you can say dissociation constant for enzyme substrate complex. In terms of dissociation and association, it is the ratio of dissociation by association. Dissociation by association. We know the equation of Michaelis-Menten. Initial velocity equals to Vmax, substrate concentration by Km plus substrate concentration. Now suppose initial velocity is equal to half of maximum velocity. Suppose in that case, और ये कब होती है? जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km के इक्वल होगा. हाउ? लेट्स सी. इनिशियल वेलोसिटी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, equated Vmax by Km plus substrate concentration. Cancel out, cross multiply. Km plus substrate concentration equals to 2S, right? Km will equal to substrate concentration, right? And why this Km? Michaelis constant is important. Dissociation constant for ES complex. Why this is important? Because it provides information about the affinity of enzyme. Affinity of enzyme for its substrate. If the value of Km is low, that means
it gives information that greater affinity of enzyme is there for substrate, for its substrate, right? So we can say affinity is inversely proportional to Km. सुपर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, हमें पता है माइकलिस कांस्टेंट इट डज नॉट वेरी विथ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, डज नॉट, सिर्फ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के, राइट? ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने नोट्स में लिखते रहा करो. और ग्राफ बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सपोज ग्राफ गिवन है, this is enzyme 1 and this is enzyme 2. On y-axis reaction velocity, x-axis substrate concentration. Question will be, which of the following enzyme has more affinity for its substrate? Which enzyme has more affinity for its substrate? Suppose value Km1, that is 10 for enzyme 1, and for enzyme 2 Km20. So we know affinity is inversely proportional to Km, right? Km10, that is enzyme 1. Low value of Km, that means greater affinity. So which enzyme has greater affinity? That is enzyme 1, whose Km value is given 10. Enzyme 2 की affinity क्या होगी in comparison to 1? Less. Right? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है. Affinity is inversely proportional to Km. Next we'll discuss about Kcat, that is catalytic constant. Catalytic constant, or you can say turnover number. Turnover number. Basically, it is the rate of catalysis by a single enzyme. Rate of catalysis by single enzyme. Denoted by Kcat, right? It is equal to Vmax by ET. Equations important हो जाती हैं. Vmax, we know maximum velocity. ET is total enzymes. Vmax is the maximum velocity of conversion of substrate to product. Vmax, maximum velocity of conversion of substrate to product. Substrate to product by all enzymes. All enzymes means total enzymes, right? ET is total enzymes. So in case Vmax पूछा होगा तो you can write catalytic constant into total enzymes. इसकी यूनिट क्या होगी Kcat की? वेलोसिटी की आपको पता है, मीटर पर सेकेंड, एंड एंजाइम तो इन अ वे पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स. यूनिट है फॉर कैटालिटिक कांस्टेंट, राइट? एंड ऑल्सो रिमेंबर, हमने माइकलिस कांस्टेंट की यूनिट नहीं देखी है.
माइकलिस कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, समटाइम्स मिलीमोल्स पर लीटर आता है क्वेश्चन पे, या माइक्रोमोल्स। मिलीमोल्स कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 10⁻³ m is molarity, माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक कांस्टेंट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ऑल्सो यू शुड नो द वैल्यूज ऑफ सम एंजाइम्स। सबसे ज्यादा टर्नओवर नंबर कौन से एंजाइम का है, दैट इज कैटालेज। देन वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज, देन एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, पेनिसिलेज, penicillinase, then LDH, that is lactate dehydrogenase, then chymotrypsin, and then DNA polymerase 1, Rubisco, and lysozyme. So question can be asked, right? You should know the values of these enzymes. Other than that, you should know in case catalytic constant is high, or you can say more, that means that enzyme is fast. And if in case value is less, that means slow enzyme, right? Fast and slow enzymes, they are determined by their catalytic constant. So catalase का catalytic constant ज्यादा है, that means that enzyme is fast. And slow कौन सा है, Rubisco and lysozyme, they are slow enzymes. Right? Lysozyme only 0.5 second inverse. Turnover number catalase का ज्यादा है, more. Next topic you should know about specificity constant. Specificity constant, or you can say catalytic efficiency. Catalytic efficiency. V equals to catalytic constant by Michaelis constant, right? Ratio of catalytic constant by Michaelis constant. It is the rate constant. This is the rate constant. It refers to the properties and reaction. Refers to the properties and reaction of free enzyme and substrate. Free enzyme and free substrate. Right? Specificity constant. ये भी important हो जाता है. राइट, डायरेक्ट इस इक्वेशन पे आ जाता है क्वेश्चन। कैटालिटिक एफिशिएंसी, इससे आपको पता चल रहा होगा हाउ एफिशिएंटली दैट एंजाइम इज एबल टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट टू अ प्रोडक्ट व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लेस। एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंटली enzyme is able to convert substrate into product at a low substrate concentration, right? Units that will be molarity inverse, second inverse, right? So we can say small value of Km, small value of Km, that means high affinity. Small value of Km, that means high affinity for substrate. अभी हमने देखा inverse relation है, high affinity for substrate, which will make
this rate constant large, catalytic efficiency large, or the Hall ratio large. Or you can say the high value of catalytic constant, high turnover. सेम राइट. रेट कांस्टेंट का माइकलिस कांस्टेंट के साथ इनवर्स रिलेशन दिख रहा है, कैटालिटिक का डायरेक्ट दिख रहा है. अगर के कैट इंक्रीज होगा, टर्नओवर नंबर इंक्रीज होगा, तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा. दैट मींस कैटालिटिक एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस. कैटालिटिक के टर्म्स में डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है. और इन केस केएम की वैल्यू कम है, स्मॉल है, अभी हमने देखा एफिनिटी ज्यादा होगी, ग्रेटर एफिनिटी ऑफ दैट एंजाइम to its substrate. Inverse relation दिख रहा है according to this equation. That means catalytic efficiency उसकी ज्यादा होगी. That enzyme is much greater efficient enough to convert substrate into product even at low substrate concentration. Right? यही रीजनिंग है जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है. इंपॉर्टेंट है, लेक्चर एंड तक देखा करो. Also, next thing which is super important, Lineweaver-Burk plot. हमने माइकलिस मेंटन का ग्राफ देखा, that was hyperbolic. Right? हम precisely determine नहीं कर पा रहे थे Km और Vmax की वैल्यू precisely. So straight line equation is much easier to understand and to precisely locate the values of Km and Vmax. इसलिए hyperbolic curve को convert किया गया है straight line ग्राफ में, और उसी को हम Lineweaver-Burk plot बोलते हैं. और जो mathematical equation है of Lineweaver-Burk, that is also important. अगर आपको याद रखना है, that is inverse of Michaelis-Menten इक्वेशन. इनवर्स किसमें होगा? Lineweaver-Burk में. राइट. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c. m इज स्लोप. राइट. इसके अलावा बहुत से प्लॉट्स हैं टू मेक दिस अंडरस्टैंड और टू प्रिसाइजली लोकेट द वैल्यूज ऑफ Km एंड Vmax. Lineweaver-Burk plot. This is the Lineweaver-Burk plot. Second is we have Haynes-Wolff equation. Then we have Adey-Hofstee equation. वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे. पहले देखते हैं Lineweaver-Burk plot. You can say inverse of this or you can say double reciprocal of Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation क्या थी? Initial velocity equals to Vmax substrate concentration by Km plus substrate concentration. This was Michaelis-Menten equation, right? Double reciprocal किया 1 by V naught. Reciprocal 1 by V naught. Km plus substrate concentration न्यूमरेटर में आ जाएगा और Vmax substrate concentration in the denominator. Double, that means one more time it will be Km by Vmax plus this. कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट विल बी 1 by V naught equals to Km by Vmax 1 by substrate concentration plus 1 by Vmax. This is 1.
1 by V max. So equation I, this is y and slope is m, this is x plus c. C is what? Intercept. On which axis? Y axis. X and y axis हमारे पास है, स्लोप हमारे पास है, इंटरसेप्ट हमारे पास है. इन दिस इक्वेशन राइट. सो ग्राफ प्लॉट किया 1 by v ऑन y एक्सिस, 1 by s substrate concentration on x axis. Graph is plotted between 1 by v and 1 by s. So जो ग्राफ आएगा this is the graph. Y axis पे 1 by v, that is initial velocity inverse, and 1 by substrate concentration on x axis. This is 1 by v max, right? This was the intercept and this is the intercept on y axis. इक्वेशन यहां लिख लेते हैं. 1 by v equals to km by v max, 1 by substrate concentration plus 1 by v max. This is on y axis, this is slope, this is on x axis plus c, this is intercept on y axis. इंपॉर्टेंट है y एक्सिस पे है या x एक्सिस पे. क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखोगे राइट. मैंने जून 2025 का पार्ट बी सॉल्व करवाया था राइट. सिमिलरली हम बाकी पेपर्स के लिए भी सॉल्व करेंगे, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है. इंटरसेप्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ भी सुपर इंपॉर्टेंट है. और लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, माइकलिस मेंटन से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो जितने भी प्लॉट्स हम पढ़ने वाले हैं उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. डिक्सन प्लॉट पे भी क्वेश्चन आया राइट इन 2020 एंड इन इवन 2022 में भी क्वेश्चंस आए. सो दिस इज द लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट ऑन x एक्सिस. दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस which is -1 by km. इन केस आपसे पूछा जाए या स्टेटमेंट में लिखा हो -1 by km नेगेटिव राइट, दिस इज -x राइट, दिस इज -y, दिस इज पॉजिटिव y. आपको क्वाड्रेंट्स का पता होगा. इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज -1 by km, on y axis 1 by v max, and the slope is km by v max. राइट. तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन इंटरसेप्ट पे आ सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइट. वैल्यूज अगर गिवन है, इन केस वैल्यू आपको गिवन है 1 by v max की, सपोज 1 by v max, सपोज 3 ग्राफ इन केस गिवन है 1, 2 and 3. तो v max की वैल्यू क्या होगी आपको सिंपली पता है. v max will be 1 by 3, that is 0.33 राइट. वैल्यूज पुट करोगे और km की गिवन है या नहीं भी गिवन है, इन केस इंटरसेप्ट गिवन है 1 by km गिवन है, that is -2. इनमें से अगर कोई भी वैल्यू गिवन है, सपोज आपको v max ना दे के आपको बोला जाए द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस is equal to 3, intercept on x axis is equal to 2 on the basis of graph. even ग्राफ भी दिए जाते हैं, तो वैल्यूज आप डायरेक्टली पुट कर लोगे इस इक्वेशन में, आपको पता चल जाएगा क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे Haynes-Wolff प्लॉट. वुल्फ
प्लॉट, राइट। माइकलिस मेंटन इक्वेशन का हमने डबल रेसिप्रोकल किया, डबल रेसिप्रोकल, हमें मिला लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट, राइट। लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट इक्वेशन, लाइन-वीवर-बर्ग यू कैन से प्लॉट और इक्वेशन, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें मिलेगा हेन्स-वुल्फ इक्वेशन, राइट। इसलिए आपको माइकलिस मेंटन इक्वेशन पता होनी चाहिए। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइन-वीवर-बर्ग हमने डबल रेसिप्रोकल करके ही हम लेके आए थे, और ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज प्रिसाइजली लोकेट कर सके हम लोकेशन और वैल्यूज ऑफ Km एंड Vmax। Km और Vmax के सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हेन्स-वुल्फ इक्वेशन क्या होगी हमारी, लास्ट में याद रखना, दैट इज S बाय V नॉट इक्वल्स टू Km by Vmax plus 1 by Vmax into substrate concentration. This is on y-axis, this is on x-axis, and Km by Vmax is intercept. In Heil's-Wulff plot, Km by Vmax is intercept, that is C, and 1 by Vmax is slope. दिस इज स्लोप, राइट। दोनों प्लॉट में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्लोप इसमें लाइन-वीवर-बर्ग में Km by Vmax है, बट इन दिस केस हेन्स-वुल्फ Km by Vmax इज द इंटरसेप्ट, और इक्वेशन बन रही है हमारी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू C प्लस mx, राइट। इसके रिगार्डिंग ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, Km by Vmax, और y एक्सिस पे हम क्या प्लॉट किया हमने, S by V नॉट, और x एक्सिस पे क्या था, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस दैट इज माइनस Km, राइट। Remember this thing, on x axis this is independent variable, दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, बट S by V नॉट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है, S by V नॉट, इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स पे क्वेश्चंस आए हैं। एंजाइम काइनेटिक्स 5 मिनट की एक वीडियो है रिवीजन सीरीज में, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, आप जाके देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आपके लिए इजी रहेगा, फिर ये लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देन वी हैव स्लोप, स्लोप इज 1 by Vmax, राइट। इंटरसेप्ट हमें पता है Km by Vmax ऑन y एक्सिस एंड माइनस Km इज ऑन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। राइट, सपोज 1-2 की वैल्यूज गिवन है, स्लोप निकालना हो तो आप इजीली इक्वेशन में पुट कर सकते हो वैल्यूज। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है इन केस ऑफ प्लॉट्स, राइट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडी-हॉफ्स्टी प्लॉट, एडी-हॉफ्स्टी प्लॉट। इसमें हमने क्या किया था, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को हमने डिवाइड किया था, माइकलिस मेंटन इक्वेशन को डिवाइड किया था विद सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। व्हाई वी आर डूइंग दिस, जस्ट टू ऑब्टेन द स्ट्रेट लाइन, टू ऑब्टेन द स्ट्रेट लाइन। लास्ट में जो इक्वेशन है पूरा आपको मैथमेटिकली इक्वेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, लास्ट में इक्वेशंस याद रख लेना,
सिंपली अगर आपको माइकलिस मेंटेन इक्वेशन पता होगा, उसको आप डिवाइड कर देना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से, फिर बाद में मैथ्स थोड़ा बहुत लगेगा और सॉल्व कर लोगे आप, इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन जो आई है वो है V नॉट बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू Km प्लस V नॉट इक्वल्स टू V मैक्स। सिंपली सॉल्व करोगे, V नॉट इक्वल्स टू माइनस Km V naught by substrate concentration plus V max. This is the straight line equation. This is on y-axis and slope is negative. Slope क्या है? Negative है. That means ऐसी line बनी है, straight line. Negative, right? This is minus m. X-axis पे क्या है हमारे पास? V naught by substrate concentration. Intercept क्या है? V max. सो याद क्या रखना है? एक्स एक्सिस पे वी हैव वी नॉट बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वाई एक्सिस पे वी हैव वी नॉट। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। हम y एक्सिस के विद रिगार्ड देख रहे हैं तो ये जो इंटरसेप्ट होगा दैट विल बी ऑन y एक्सिस, राइट? दैट इज v मैक्स। और स्लोप क्या है हमारे पास? m इज स्लोप, दैट इज km। तो ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा? नेगेटिव है, राइट? तो स्लोप क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। x एक्सिस पे v नॉट बाय सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, y एक्सिस पे v नॉट, एंड स्लोप इज माइनस k, राइट? इन केस आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, स्लोप की वैल्यू गिवन है, y एक्सिस की गिवन है, x की निकालनी है, आप इजीली निकाल सकते हो विद द यूज ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इंटरसेप्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सारे प्लॉट्स हमने पढ़ लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इक्वेशंस हमने देख ली हैं। कुछ चीजें जो स्किप हो गई हैं या मिस हो गई हैं वो हम वन शॉट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट है।